Rural Indians suffer from a hidden hunger despite availability and affordability. Their diets are protein poor. As does the world need to support the food production by 2050? कितनी जमीन चाहिए होगी हमें 2050 तक? इंडिया है 0.84%। जितनी जमीन है हमारे पास उससे भी कम चाहिए, 16% कम चाहिए। बाकी सब जगह जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है इंडोनेशिया में। बाकी देखिए अर्जेंटीना 7.8 टाइम्स ऑफ अर्थ, ऑस्ट्रेलिया 6.8, यूएस में 5.5 टाइम्स। Hence, you already know for me development means education, health, employment, and environment. So health is one of them, and really the crucial issue faced by the country, I'll say the world as well. For the first time, I wish and I request you, I never said it before, to watch this video till the end. And if possible, if you like, recommend to others. If you want to follow suggestions, you are welcome. For your well-being, for well-being of the country. You can recommend to the state as well. This issue, actually, this was a news uh, down to earth. It says rural Indians suffer from a hidden hunger despite availability and affordability. Their diets are protein poor. It is said by the ICRIST, International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, the International Food Policy Research Institute, and the Center for Economic and Social Studies. Means three great institutes, they are concluding something already which is known, or maybe at times misleading as well. Or maybe there is a problem of the reporter, because it says the study was conducted across 6 states and 9 districts. I don't think 9 districts would be sufficient to uh, reflect on the condition in the country. And 6 states most likely would be Bimaru states. And the researchers found that diet in these areas were dominated by cereals like rice and wheat, which contribute to 60 to 70% of the daily protein intake. If protein intake is so high, then why should there be problem? Yet, while these would provide some protein, they lack the essential amino acids necessary for balanced nutrition. That is a statement. And it's not that rural Indians cannot afford to produce sufficient protein-rich foods like pulse, daily eggs, and meat. Rather, a mix of cultural food preferences, limited nutritional awareness, and financial constraints mean that these ingredients are underutilized in India's villages. This is a statement I don't think I can appreciate. A mix of cultural food preferences. I will come to it later on. Uh, the best food in the world is considered to be Indian food. And when you say India, India till date lives in villages. If you remember your childhood, or if you are young, you remember your father's childhood, or ask them, Indian mothers never repeat the food items in their daily core. They have the best of the possible combinations depending on the season and availability. But they say cultural food preferences, limited nutritional awareness. Later on, this report says that the educated women they have better nutritional awareness. मुझे हंसी आती है इस बात से. That means men also must have they are educated. मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि ये जो जंक फूड है, ये फास्ट फूड है, क्या सिर्फ लड़के ही खाते हैं जो एजुकेटेड हैं? नहीं है, इस मामले में लड़कियां नहीं खाती. न्यूट्रिशनल लिटरेसी हैज नथिंग टू डू विद अवर एजुकेशनल सिस्टम. इनको इतना भी नहीं पता. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स mean that these ingredients are underutilized in India's villages.
इंडियाज विलेजेस जितने न्यूट्रिशन रिच हैं, deliberately we are curtailing that, and we will come to that later on. Hmm? This, according to the study, challenges assumptions that malnutrition is an issue of affordability. ठीक उससे उल्टा बोल दिया उन्होंने. Instead, it perpetuates by deeply ingrained dietary habits coupled with a lack of understanding about the importance of protein-rich foods. एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो उनका प्रोटीन रिच फूड होता है, रूरल इंडिया जैसे दे कैन नॉट अफोर्ड, और इधर ये कह रहे हैं कि दे प्रोड्यूस सफिशिएंट प्रोटीन रिच फूड इंडियन विलेजेस. दे आर कंट्राडिक्टिंग themselves. Another important finding of study was that households where women had higher level of education, जिसकी मैं बात कर रहा था, Indian education system, it doesn't help you in that. Hmm? Yet another is the PDF, which provides subsidized food grains to two-thirds of Indians while successfully calorie intake है. मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि ये जो खाली आप 5 किलो आप अनाज दे देते हैं, आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी से तो कोई मतलब है ही नहीं. इसकी बात भी हम लोग बाद में करेंगे. Without targeting efforts to promote diverse diets and educate communities on importance of protein, malnutrition will persist. ये कुमार साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो. इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड स्कूल करिकुला. खाली दुनिया भर की आप सजेशन देते रहिए, फॉलो किसने करना है? क्या गवर्नमेंट कुछ बोलती है? फिर एक और रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ की. न्यू एनालिसिस रिवील्स widespread gap in the transparency over environmental threats, many disclosure on fertilizers misuse deemed specific. काफी एनालिसिस इन्होंने दिया है और उन्होंने बताया है कि 45 मेजर फूड कंपनीज एंड द रिपोर्ट ऑफ 5,000 फाइलिंग्स बिटवीन 2018 एंड 23 क्वाइट रिसेंटली, वो हमें बताते हैं कि वो कभी भी पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को हमें नहीं बताते रिपोर्ट्स में. The biggest food giants include Coca-Cola, Diageo, Adani, Wilmar, PepsiCo, Walmart, Nestle, Carrefour, Heineken and Mondelez. वो सारा उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है और उसका जो है फिर ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है और एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, सारी बड़ी कंपनियां कभी नहीं बताती. और मैं हमेशा कहता हूं 3 तरह की जो कारपोरेट्स हैं, सबसे बड़े जो हार्मफुल है एनवायरमेंट को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी, एक है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. अगर दवाई की जो पन्नी होती है, अगर उस पे हार्मफुल इफेक्ट्स क्लियरली लिख दिए जाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर उन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा. सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जितना पॉल्यूट करते रहें गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती. एंड थर्ड इज दिस फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ये जितना नुकसान आपके हेल्थ को पहुंचाते हैं, आई डाउट इफ एनीबडी विल डू इट. ये सारी की सारी चीजें जो है 69% of the upstream companies published at least one report containing a disclosure on fertilizer risk over the 6-year period. In contrast, 81% of the companies and 54% of the downstream companies had done so. In total, report analyzed 5165 documents covering 6-year period containing 2350 relevant tax etc. वगैरह वगैरह. ये सारी कंपनीज जो हैं दे किसी की कोर्ट थी, इट्स लाइक ए बिकनी दैट रिवील मोर एंड हाइड लेस, और उल्टा ऐसा ही कुछ. लेकिन इसके बाद जो है ये सारी चीजें इससे पहले डाउन टू अर्थ पहले भी बोल चुका है मेरी किताब जो है, और मैं पहले भी इसको जो है मेरी जो बुक है एजुकेशन एंड हेल्थ, उसमें मैंने आपको बताया है. एंड दिस इज देयर. और एक अच्छी बात क्या है कि नाउ इट इज अवेलेबल ऑन ई बुक्स, किंडल एडिशन इट इज आल्सो देयर. और एक रिपोर्ट जो दैट आई हैव कोटेड हियर, it is towards the end of the book. It is on page 130. And this is by Shagun, the same Shagun in the report. What does it say? That how many years have passed and which minerals have been on the decline
in our most favorite cereals, rice and wheat. In rice, from 20s, 1960s to 2010s, means a decade before, calcium has declined by 45% content in the nutritional values. Calcium has, zinc has declined by 30% and iron by 30%. And in terms of wheat, decline 30%, 27%, 90%. And then silicon, nickel, silver, gallium witness the same drop, while arsenic toxic content has increased by 1493%, 1493%. This report Shagun had prepared with very hard work and including many researches starting from say beginning of this century and also the 1960s which she has talked about. She has interviewed many people and the kind of effort that is there, this is called pure research. और हम सब लोगों को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दिस वॉज देयर इन डाउन टू अर्थ का जो रेगुलर एडिशन होता है उसमें जनवरी 16 में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट. और मुझे नहीं लगता कि फिर भी लोगों पे असर पड़ता है. अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो गई, क्या आम आदमी को पता भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन? इवन WHO जो है ये रेफर डिफाइन करता है न्यूट्रिशन को, वो इन तीनों चीजों में डिफरेंस नहीं करता. वन थिंग दैट इज वेरी सिंपल, फूड इज एनीथिंग दैट यू कैन ईट एंड डाइजेस्ट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूट्रिशनल वैल्यू. हम कुछ भी कबाड़ खा लेते हैं पर फिर भी हर कुछ नहीं खा सकते. एक चीता जो है वो जिराफ को खा सकता है, एक चीता कंगारू को भी खा सकता है. घास एक्चुअली फूड इज स्पीसीज स्पेसिफिक. कार्निवोर जो है वो कार्निवोर ही रहेंगे, हर्बीवोर जो है वो हर्बीवोर ही रहेंगे, ओमनीवोर जो है ओमनीवोर रहेंगे. एनीथिंग दैट यू कैन ईट एंड डाइजेस्ट, शेर घास नहीं खा सकता, गाय मांस नहीं खा सकती, दीमक सब कुछ खा सकती है. So food is species specific. That is what we commonly eat. मैंने बताया आपको कि शेर जो है वो कंगारू को खा सकता है, बट कंगारू अफ्रीका में मिलेगा तभी तो खाएगा ना. What we commonly eat, what is available around us, that forms our diet. वेस्ट में, वेस्ट एशिया में जहाँ ये रिलीजन्स पैदा हुए, एंड रिलीजन आई मीन अब्राहमिक रिलीजन, वहाँ घास ही नहीं थी तो फसलें कहाँ से होती. तो नॉन वेज फूड वाज द प्रेफर फूड. और आज भी वहाँ के बिलीवर्स जो हैं दे स्टिल बिलीव इन दैट, दे स्टिल टेक इट एज अ स्टेपल डाइट. लेकिन अब पंजाब में यू हैव सो मच ऑफ राइस but people are wheat eaters. So what you commonly eat, that is your diet. और लोग आमतौर पे न्यूट्रिशन को बैलेंस डाइट कह देते हैं. व्हाट इज बैलेंस डाइट? न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी and the substances that release nutrition or help in the release of nutrition. These are called nutrients. 7 major nutrients are there: proteins, carbs, lipids, vitamins, minerals, water, roughage, and then nutrients are there. 30 or more are common. Some rare ones are also there. Here we are talking about the major, the minerals and the rare nutritional value, rare nutrient, minor nutrients, you should say. And then again, another report I have placed in here, and it is from Times of India, October 10, 2024, in page 131 of my book. It says how much of how many earth does the world need to support the food production by 2050. कितनी जमीन चाहिए होगी हमें 2050 तक? इंडिया है 0.84%. जितनी जमीन है हमारे पास उससे भी कम चाहिए, 16% कम चाहिए. बाकी सब जगह जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है
इंडोनेशिया में। बाकी देखिए अर्जेंटीना 7.8 टाइम्स ऑफ अर्थ, ऑस्ट्रेलिया 6.8, यूएस में 5.5 टाइम्स। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे घर का खाना दैट इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। और मैं यूथ को हमेशा कहता हूं कि ये जो भी जंक फूड है, हम्म, एक तो पैसा ज्यादा लगता है, आप लोगों को इंस्टेंट के चक्कर में जो चार्जेस लगते हैं डिलीवरी के, आपको समझ भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं लगता। और जो हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, फिर जो डॉक्टर का खर्चा होता है, मेडिसिन का खर्चा होता है, बाद में पता लगेगा। मेरी उम्र में, बाय द वे आई टर्न 70 यस्टरडे, 16th, और पर मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ इज डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज द सोल्यूशन, व्हाट कैन बी डन? सिंपल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं हमारी हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए? दुनिया भर की चीजें डिस्कस करते रहो, है ना। सरकार ने पैसा रिलीज करना नहीं, सरकार ने कारपोरेट्स के ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं, लेकिन जो है सरकार ने बार बार विज्ञापन देते रहने हैं दैट यू गॉट टू बी हेल्थ कॉशियस। आसान सा तरीका, पहली बात तो ये है दैट वी सर्व मिड डे मील टू द चिल्ड्रन। सेंटर बना के भेजता है मेनू। क्यों भाई? डाइट लोकल होती है, न्यूट्रिशन लोकल होती है। जो स्कूल्स को परचेज करना पड़ता है मार्केट से, इफ दे परचेज फ्रॉम द नेबरहुड फार्मर, नेबरहुड फार्मर जो है, जो 2 रुपए की चीज बेचता है और मार्केट में 40 रुपए की बिकती है, वो 2 रुपए की चीज स्कूल को 10 रुपए में भी दे रहा अगर, तो उसका 5 गुना फायदा है, उसकी रोजी रोटी बनेगी और स्कूल को भी बेनिफिट होगा। दे कैन इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड एंड इफ पॉसिबल दे मे इंट्रोड्यूस द हॉट ब्रेकफास्ट स्कीम। अगर न्यूट्रिशन पूरा करना है तो मिड डे मील में नॉट सफाइस, क्योंकि घर में खाना नहीं होता, शहरी लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मैं घर से निकलता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, इंस्टीट्यूट पहुंचता हूं, गाड़ी से निकल जाता हूं। आई कैन अफोर्ड, क्योंकि मैं एक ही टाइम खाना खाता हूं। जो लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, फिर ऊपर से जो है वो टॉप अप्स भी खाते हैं, और फिर दुनिया भर की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो भी जंक है, जिससे कि आपका सारा कुछ गड़बड़ होता है। दुनिया भर की मैदे की चीजें खाते हैं और फिर एनवायरमेंट को गालियां देते हैं। सरकार ने कुछ नहीं करना। एक काम बड़ी आसानी से कर सकती है सरकार, जो लंच टाइम होता है आधे घंटे की जगह 1 घंटा कर दिया जाए। उससे पहले जितने भी आपके पास पार्क्स हैं उनको बढ़िया सा फर्निश कर दिया जाए, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, ऑर्डर पास कर दिया जाए कि आधे घंटे के लिए दे विल रिमेन लॉक्ड एंड एवरीबडी हैज टू बी आउटसाइड इन द पार्क। ग्रुप गेम्स इंट्रोड्यूस करो वहां पे जो चीप है। फुटबॉल है, नहीं खेल सकते, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, खो खो तो कर सकते हैं, वॉलीबॉल तो कर सकते हैं। और जिनको खेल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, दे मस्ट कीप वॉकिंग फॉर दैट पीरियड। नहीं कर सकते? जब पूरा देश थाली बजा सकता है एक साथ, तो क्या ये नहीं कर सकता? एंड आई कैन बेट इट, विद इन 2 years देश का हेल्थ बजट आधा रह जाएगा। फिर आपके ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का क्या होगा, बड़ी कंपनियों का? वो सरकार को क्या चंदा देंगे? ये हमारी सरदर्द नहीं होनी चाहिए। सोचिए, हेल्थ इज क्रूशियल एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ। थैंक यू।